Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Sir, Good morning. बोलिए. sir, can you please explain file system once more, sir? I have some problems regarding this, sir. So only like what is file system, sir? File system means you would like to know about the hierarchical file system, hierarchical file structure of Linux, or file system like ext, ext3, or FAT and Yes, DFS. yes, sir. Yes, sir. I have confusion in, sir, like what exactly does file system mean, sir? I have searched on internet also, sir. But there I have found, sir, that like a file system mainly is associated with the size of the partition somewhere. Like if you are creating a partition, so what can be the maximum size of the partition or things stuffs related to that, sir. So I'm not getting what exactly file system is, sir. Look, what you have got from the internet, that file system defines the size of the partition. It is correct. Yes, sir. Because as I have explained, that different file systems are used as per the size of the partition. Like for example, suppose you have to just format a partition of 4 GB. So at 4 GB, you can use FAT file system, you can use NTFS also. But if you would like to format a partition which size is more than 32 GB, in that case you cannot use NTFS. Sorry, you cannot use FAT because FAT supports maximum 32 GB. So, so file system defines the size of the partition, but what is file system exactly? Is file system defines the location of a storage device, at which data can be written or data can be read. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Suppose we have 10 GB drive. We have 10 GB drive. In that case, at 10 GB, we can store huge data. Yes, sir. Fine. If we can store huge data, so there must be an indexing system. There must be a table by which we can easily write data on the hard disk or storage device, and we can read data from the storage device. Yes, sir. So that indexing system or that index table is created by the file system. It means, sir, like whenever we want to access the data which we have stored in our that disk, sir, or in drive, then the role of file system comes into play. Yes. In that case, roles of file systems occurs, and to support the size of the drive, file system performs its roles, and in few more aspects, file system is very usable, like for journaling. Journaling term is used because journaling gives us facility to fast read or write data. Fine. So you have no idea about journaling, but in brief, you can understand that file system is used to format a partition. As per the size of the partition, we use different file system. After the formatting of partition, we create an index table. With that index table, we can store or we can read data from the storage device. So what, sir, right now you said formatting a drive, sir, or so formatting means, sir? Formatting means creating a new index table. So it means creating a new drive. Then only a new index table will be created. No. Creating a new drive can be done with the help of disk management very easily. Yes. But if you have created a drive or partition, but on that drive, if you would like to store some data, how can you store if there is no indexing table?
Fine. It Yes. is just like a plot. You can buy a plot, but you cannot live on that plot if you have not created rooms. Yes. Fine. Yes, sir. Okay. And sir, one more question, sir. In while installation of Linux, sir, we create a root partition and we just allocate around 20 GB of space to that partition. So, sir, and whenever we create boot and home, we mount it in root, sir, root partition. Right. So, sir, where we can, sir, like whenever we open the Linux, sir, virtual Linux in VMware. So where can we, sir, can we see that root partition, sir, which we have created of 20 GB, or directly, sir, or indirectly? Look, first of all, at the time of installation, when you create these partitions, so these partitions are shown by the system at the screen at that time particularly. Just after creation, you can see that, okay, fine, this is the root partition, this is the home partition, this is the swap partition. And at that window, you can see the space also. But after installation, if you would like to see, you can see it, but I have not given you idea how to see. But if you want, you can use command fdisk space minus L. fdisk minus L. Fine. We will cover it in partition chapter. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Any more question? Any doubt? Anybody? Yes, sir. सर जब Ubuntu इंस्टॉल कर रहे थे तो रेर फाइल बन जाता है, ISO फाइल डाउनलोड नहीं होता। देखो बच्चों, ISO फाइल तो डाउनलोड होता है, आप ही देख रहे हैं, आप में से बहुत बच्चों ने कहा कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, फिर फाइनली उन्होंने डाउनलोड किया। ठीक है, मेरे में रेर फाइल बन जाता है। रेर फाइल बन जा रहा है तो आप उसका डिस्क इमेज फाइल डाउनलोड कीजिए ना, जो मैंने आपको लास्ट टाइम इसको करके भी दिखाया है मैंने। मैंने वो डाउनलोड किया सर। Sir, actually, sir, if WinRAR software is installed in anyone's computer, sir, like previously, I have also installed, I have pre-installed that software, sir. So whenever I was downloading that ISO file from the official site website, sir, I was getting the RAR file, sir. So basically, sir, to get the ISO file, sir, I have then uninstalled that software and then I have got the ISO file, sir. Means due to WinRAR? Yes, sir. Due to WinRAR, if anybody is downloading the ISO file, it comes into zipped form. Yes, sir. RAR archive, sir. Okay, RAR, okay, fine. Fine. If we, okay, fine. If you are getting a RAR file, so you can decompress it, no? Yes, Satish. Sir. Yes, sir. Satish, as Vinayak is telling, yes, if you will uninstall the WinRAR, in that case, you will directly download the ISO file. In case if you have installed WinRAR, you are getting RAR file, so just decompress it. You can get the disk image file. Have you decompressed the RAR file? Yes, sir. After decompressing, what happened? RAR फाइल है, उसके बाद खुल ही नहीं रहा, इसके बाद हम छोड़ दें सर। अच्छा, कोई नहीं, तो उसको आप डिकम्प्रेस करके भी देख सकते हैं बच्चे, है ना, कि वो डिकम्प्रेस करेंगे तो उसमें से फाइल बाहर आएगी। यस सर। हाँ सर, अगले क्लास में बताएंगे कर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम?
यार राघव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने अनम्यूट किया अपने आप को। नो सर। ओके, ठीक है। देखिए, तो अभी मेरे ख्याल से लास्ट 2 क्लासेस आपकी नहीं हुई हैं, एक ईद की वजह से और दूसरा मैंने जो क्लास सस्पेंड किया था उसके वजह से। यस सर। राइट, तो उसके पहले तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कैट कराएं। कमांड सर। अच्छा, फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे हम लोग। Yes, sir. And then we have Viva also, sir. We have had Viva. यस यस यस। सर यस, सर सुडो कमांड सर क्या यूज किस लिए यूज किया जाता है? देखो, सूडो कमांड यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज लेने के लिए, कि अगर कोई लोकल यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना चाहता है तो सूडो का यूज करके करे। ठीक है। सर तो इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटर करेगा सब वो भी कर सकता है, जो लोकल यूजर बनाएंगे हम लोग? नहीं, सारे नहीं कर सकता है, कुछ और फैसिलिटीज मिल जाती हैं, है ना। तो आप और ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बट सारे के सारे नहीं सर। ओके सर। ठीक है। यस सर। सॉरी, मैं कह रहा हूं कि स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. आज अभिषेक ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो तो हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। क्लियर है सर कॉन्सेप्ट अभी। अच्छा, हो ठीक है, गुड। जब होगा पूछ लूंगा सर। ठीक, अभी देखो, जो भी हम फाइल बना रहे हैं उस फाइल में अगर हमें कोई डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए हमने कैट कमांड का यूज कर लिया, कैट एंड रिडायरेक्शनल ऑपरेटर डाल करके हमने जो है वो आपको फाइल में कुछ इनपुट करा दिया। उसमें कुछ ऐड करना है तो अपेंड के लिए डबल रिडायरेक्शनल ऑपरेटर का यूज कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है अगर कोई फाइल है उसमें कुछ एडिट करना है,
ठीक है, उसमें कोई पहले से कुछ इनपुट किया हुआ है या कुछ हमें इनपुट ही करना है, फ्रेश ही फाइल बनानी है, तो इन सब के लिए जो लिनक्स का CLI में जो टेक्स्ट एडिटर यूज होता है वो टेक्स्ट एडिटर है आपका VI। ठीक है, VI और VI का ही एडवांस वर्जन है VIM। तो VI और VIM ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसमें आप नई फाइल बना भी सकते हैं, नई फाइल के अंदर इनपुट भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और जो है आप अपने VI फाइल को VIM जो एडवांस वर्जन है उसके हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। इन सब के अलावे एक और एडिटर होता है आपके लिनक्स में जिसको बोलते हैं हम नैनो। नैनो के जैसे हम VI के हेल्प से डिफरेंट टास्क कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से नैनो के भी हेल्प से कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है, हम यूजर्स को जो अच्छा लगता है अब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी ये टेक्स्ट एडिटर जो है वो आपको नई फाइल भी क्रिएट कर देगा, कोई जरूरी नहीं कि पहले से फाइल बनी हुई हो। जैसे ये चीज आपने देखा कि टच कमांड के हेल्प से पहले हम फाइल बना लेते हैं, फिर कैट के हेल्प से उसमें एंट्री करते हैं, या कैट से भी हम नई फाइल बना लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हम VI में भी नई फाइल बना सकते हैं या बनी हुई फाइल पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये टेक्स्ट एडिटर आपको CLI के हैं। और अगर आप GUI टेक्स्ट एडिटर की बात करते हैं, ये VI क्या है, ये टेक्स्ट एडिटर है। एडिटर, ठीक है, तो ये किस लिए टेक्स्ट एडिटर इन CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। अगर हम यहीं पे मैं मेंशन कर दूं नीचे टेक्स्ट एडिटर इन GUI, तो GUI में आपका आता है gedit, ठीक है, gedit करके यूज होता है टेक्स्ट एडिटर। और एक थोड़ा सा मे भी मिस्टेक कर रहा हूं कि राइट आता है, ठीक है, ये ग्राफिकल। अब देखिए इस VI में काम कैसे करते हैं। जब आप VI स्पेस फाइल नेम देंगे तो फाइल नेम नहीं दे लें तो एक फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, लेकिन जब वो फाइल ओपन होगी तो वो आपका होगा सिंपली कमांड मोड में, अपन उसको कमांड मोड बोलते हैं क्योंकि VI में काम करने के लिए डिफरेंट मोड है। डिफरेंट मोड्स ऑफ VI क्या है। पहला मोड है सर आपका कमांड मोड। यहां पे आपका जो कमांड मोड आता है, मैं अभी करके दिखाऊंगा, कमांड मोड आता है, उस कमांड पे आपसे पूछता है आप करना क्या चाहते हैं, बट ऑब्वियसली फाइल में हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आई प्रेस करते हैं। जैसे ही आप आई प्रेस करते हैं
आप चले जाते हैं इंसर्ट मोड में। ठीक है, यहां पे आपको एंट्री करने की फैसिलिटी मिल जाती है। अब सपोज आपने एंट्री कर लिया, एडिट कर लिया, जो भी आपको टास्क करना था आपने कर लिया। अब आप आना चाहते हैं बाहर, तो बाहर वाला थर्ड मोड होता है एग्जीक्यूट मोड। इस मोड में जाकर के आप जो है वो अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, विदाउट सेव किए हुए एग्जिट कर सकते हैं, फोर्सफुली सेव कर सकते हैं, फोर्सफुली एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम VI में जैसे ही फाइल ओपन करेंगे तो किस मोड में आएगा? फर्स्ट मोड, कमांड मोड में। फिर हम आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में चले जाएंगे, और फिर हम एस्केप प्रेस करेंगे तो हम बाहर निकल आएंगे इंसर्ट मोड से, और वहां पे एग्जीक्यूट मोड में आ जाएंगे, जहां से हम सेव करके फाइल को बाहर निकल सकते हैं। सेव करने के लिए आपका WQ कमांड यूज होता है। W से सेव और Q से क्विट यानी एग्जिट। आप चाहे तो सिर्फ W भी प्रेस कर सकते हैं कि भैया फिलहाल सेव कर लो, बाकी और मैं देखता हूं। ठीक है, अब ये टास्क करके देखिए तो पता चले। तो कौन है ये? मशीन ऑन है? विवेक, किनकी मशीन यूज होती थी? ईशान सर सर, मेरी होती है ईशान। सर। ईशान। यस सर। हेलो। हाँ, शेयर कीजिए। प्रशांत, सर सर विजुअल स्क्रीन सर। हाँ जी विजिबल है। सॉरी किशन, हाँ यस सर। फाइन। CD कर लो। यस सर। राघव, अपने आप को म्यूट कर लो। अगर इफ यू हैव नॉट टू से एनीथिंग तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, यस किशन, CD एंटर करो। यस सर कर दिया सर। अभी लिखो फॉर एग्जाम्पल VI स्पेस भी, अच्छा VIM डालो तो देखें इस वर्जन में सपोर्टेड है कि नहीं। VIM एंटर नहीं नहीं, VIM लिखो, I के बाद M लिखो। सर। यस स्पेस, कोई भी फाइल का नाम दे दो, लाइक नाम दे दो टॉम।
एंटर कर दूं सर? हाँ जी, एंटर कीजिए। यस सर। Wait. No, VIM is not supported. Okay, fine, use VI space Tom. एंटर प्रेस करो। देखो ये फाइल मेरी ओपन हो गई, नीचे लिख भी रहा है कि ये एक न्यू फाइल है। अब ये हम कहाँ हैं, किस मोड में हैं? कमांड मोड में है। अब आई प्रेस करो। आई क्लिक। यस सर, कर दिया सर। अच्छा ये तो ठीक है। अब आप लिखिए आई स्पेस आई एम अ बॉय, कुछ भी समथिंग। एंटर प्रेस करो, कुछ और लिख लो। फाइन, ठीक है। तो आपने कुछ लिख डाला। अब आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है, तो एस्केप प्रेस करो। यस सर। एस्केप की दबाओ। यस सर, दबा दिया सर। ठीक है, कोलन डबल डॉट जो होता है कोलन प्रेस करो। यस सर, ये नीचे कर कोई दिया। चेंज, उसके बाद डब्ल्यू की करो, WQ। WQ कर दिया सर। ये हो नहीं रहा है बच्चे, एंटर प्रेस करो। आई थिंक योर सिस्टम इज कुछ स्लो। हो नहीं रहा, आवाज आ रहा है सिर्फ। हाँ नहीं वो नो सर, सिस्टम। नेटवर्क में हो सर। ओके ठीक है। नाउ प्रशांत वुड लाइक टू शेयर हिज स्क्रीन, सो जस्ट स्टॉप योर शेयरिंग किशन। ओके सर। या प्रशांत, प्रशांत आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, आ तो गया है लेकिन विजिबल नहीं हो रही है। Yes, VIM work, VIM, good. VIM space file name. No. किशन, यस सर। क्या हुआ? किशन कह रहा प्रशांत हूँ। का था सर। हाँ प्रशांत, Can I share, sir? sure you can share. वो इंटरनेट है प्रशांत का। ओके विनायक, Is it visible, sir? यस विजिबल। देखो प्रशांत के सॉरी हाँ प्रशांत के मशीन पे जो है वो वर्क कर रहा है VIM, देखता हूं। Sir, to increase the font size, which key you have sent, sir? कंट्रोल शिफ्ट Control. प्लस,
यस यस एनफ। चलो लिखो, हाँ VIM स्पेस तुम भी लिख लो टॉम। नो फाइन, VI स्पेस टॉम। इंटर सर। यस, प्रेस आई। स्पेस। हाँ कुछ भी लिख डालो, यहां भी ये चीज हो नहीं रहा है। वहां पे टाइप करो, अपने आप ओवरराइट होगा वो। यस सर। ठीक है, एस्केप प्रेस करो। हाँ कोलन, हाँ ठीक है गुड, ये चीज हटना चाहिए नीचे से, सबसे बॉटम में देखेंगे जैसे हम कोलन डालेंगे तो फाइल नेम हट जाता है। अब यहाँ पे WQ करो, इंटर सर। एंटर प्रेस करो। फाइन, इस तरीके से एक फाइल बन गई। पहले VI से फाइल को ओपन किया, इंसर्ट मोड में गए, कुछ लिखा, हाँ, या फिर अगर लिखे हुए चीज को चेंज करना है तो उसके ऊपर ओवरराइट किया, फिर सेव करके बाहर चले आए। ठीक है, अब इसी तरीके से है नैनो। अब लिखिए नैनो जॉन। इंटर सर। यस, ठीक है। अब यहाँ पे किससे क्या करना है वो आपको नीचे सारा बताएगा। हाँ फिलहाल आपको कुछ लिखना है, आप लिखो। फाइन, अभी आपने क्या करना है, एग्जिट करना है ना, एग्जिट करना है, सेव करना है, तो एग्जिट X करो, कंट्रोल X, एंटर प्रेस कर लो, उसका कंट्रोल X। अब Y प्रेस करो, नीचे दे रहा है ना सेव करने के लिए Y। यस सर। ठीक है, सो Y वाइट press- प्रेस करेंगे। हाँ फाइल नेम टू राइट जॉन, एंटर प्रेस करो। फाइन, उसने आपसे कंफर्मेशन पूछा कि जॉन में लिखना है। तो ये दो एडिटर हैं VI एंड नैनो, इन दोनों का यूज करके आप फाइल के अंदर एडिट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. फाइन, अब देखिए आपने जो भी फाइल बनाई उस फाइल, यस विकास बोलिए, विकास एक तो बार और हेलो हाँ विकास। सर, एक बार और बता दीजिए, नहीं क्लियर है। अच्छा कुछ नहीं, ये जो दो एडिटर हैं VI एंड नैनो, इन दोनों का यूज करके हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा लिख सकते हैं और सेव करके बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे हमने VI टॉम यूज किया, चलो फिर से एक फाइल बना लो VI टाइगर। ठीक है, फाइल ओपन हो गई। अब आई प्रेस कर लो, इंसर्ट मोड में आ गए। अब आप कुछ लिखो, इंटर सर। हाँ हाँ काफी है, एस्केप करो। स्केप सर, कोलोन ना सर। नहीं, पहले एस्केप, इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए, फिर आप कोलन दबाओ, WQ, सेव एंड एग्जिट, एंटर प्रेस करो। ठीक है विकास, यस सर। अब किसी चीज को नैनो से कर लो, लॉयन, अच्छा लॉयन पहले से था, चलो कोई नहीं, इसी में आ जाएंगे।
हमें राइट करना है, तो एंड पे आओ, इसके एंटर प्रेस करो, लाइन के एंड पे। अच्छा, वहीं से एंटर प्रेस कर दे, लाइन के एंड पे आओ, एंटर प्रेस करो, दूसरी लाइन लिख लो। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर लो, कंट्रोल एक्स करो एग्जिट करने के लिए। नीचे दिया हुआ है कैरेट का साइन बना हुआ है, कंट्रोल है, कंट्रोल एक्स। फिर वाई करो, एंटर प्रेस कर दो। हाँ, ठीक है विकास। यस सर। अब देखो, जो भी फाइल है हमारी, अगर फाइल पे हमें ये चेक करना है कि इस फाइल में कितने लाइंस हैं, कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है, तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए कमांड यूज होता है WC। ठीक है, आप WC कमांड यूज कीजिए। देखिए, WC स्पेस, फॉर एग्जांपल फाइल का नाम है लॉयन, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये दिखा रहा है कि इसमें 3 लाइंस हैं, 10 वर्ड्स हैं एंड 48 कैरेक्टर्स हैं। ये मुझे तो समझ में आ रहा है क्योंकि मैं यूज्ड टू हूं, लेकिन आपके लिए टफ हो रहा है कि कौन सी लाइन है, कौन सा वर्ड है, कौन सा कैरेक्टर है। तो इसको प्रॉपरली, इसका आउटपुट समझने के लिए आप WC के साथ में स्विचेज यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे WC स्पेस -L, L फॉर लाइन, हाँ, स्पेस फाइल नेम यानी लॉयन, एंटर प्रेस कीजिए। दिखा रहा है 3, यानी कि 3 लाइंस हैं। इसी तरीके से WC स्पेस -W, W फॉर वर्ड, लॉयन, 10 वर्ड्स हैं एंड टोटल कैरेक्टर इंक्लूड्स स्पेस ऑल्सो, स्पेस, सिंबल्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग। तो कैरेक्टर के लिए C, now it is very clear कि 3 represents line, 10 represents words and 48 represents characters. So here lion is being written everywhere after 3, 10, 48, after 10, 3 also. So why, sir? It shows file name, from which file I am giving output. Fine. Yes. तो WC कमांड का यूज करके आप वो फाइल के ऊपर में लाइन, वर्ड, कैरेक्टर्स को काउंट कर लेंगे। सर एक साथ तीनों कमांड को नहीं यूज कर सकते? एक साथ तीनों कमांड को अगर यूज कर भी लेते हैं तो फिर तो इकट्ठे ही दिखा देगा सारा। यस सर। ये तो नहीं शो कर पाएगा कि कौन सा लाइन, कौन सा वर्ड, कौन सा कैरेक्टर। तो वो पहले आई लगाएंगे तो पहले लाइंस, मतलब कि कैरेक्टर शो। सॉरी। ठीक है, बढ़िया। हम लोग एक बार यूज करते हैं। चलो, WC स्पेस -LWC C स्पेस लॉयन, Like this, sir. हाँ, एंटर प्रेस करो। अगेन सेम आउटपुट है। तो अब जब आपको इतने स्विचेस याद हैं कि भैया किससे लाइन, किससे वर्ड, किससे कैरेक्टर आता है, तो ये सीक्वेंस अगर आपको पता है तो आप बिना स्विच का भी फर्स्ट कमांड से ही ऐसे ही समझ सकते हैं। यस सर। है ना? तो फिर ये एफर्ट हमारा थोड़ा सा दिखता है कि बेकार हम इतना लिख रहे थे यार, ये तो हमको पता ही है कि पहला लाइन है, दूसरा वर्ड है, तीसरा कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे हम लोग कभी भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम लोग नहीं यूज करते ना, तो LWC कुछ भी नहीं, सीधे WC स्पेस फाइल नेम दिया, आउटपुट आ गया सामने, याद है हमें बाय हार्ट कि किसका क्या मतलब है। ठीक है सर।
Yes, sir. Okay. Now WC हो गया। अब इसके बाद मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? No, sir. No, sir. No, Yes, sir. Stop sharing, sir. Yes, sir. Vinayak. अच्छा, तो विनायक आप अपना स्टॉप कर लीजिए। अब देखो, एक नेक्स्ट कमांड है आपकी फाइंड, लोकेट, हेड एंड टेल। ठीक है, देखिए इस कमांड को हम लोग कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अटेंडेंस मार्क कर लूं आपका। फाइन। Yes, तो sir. फाइंड, लोकेट, हेड एंड टेल, ये फाइल पे उसके लाइंस को देखने के लिए। फिर इसी तरीके से एक फाइल के ऊपर में आपको उसको कंप्रेस करना, डिकम्प्रेस करना, उसका साइज चेक करना, उसका बैकअप लेना, उसको रिस्टोर कराना, ठीक है, उसमें से कुछ कट करना, फिर आपको उसको सॉर्ट करना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो एक फाइल पे हम जनरली करते हैं। तो एक फाइल को हैंडल करने के लिए मैक्सिमम जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी हम यहाँ पे कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ और आता है कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए फाइल पे, तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि इकट्ठे एक चीज के बारे में सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से हम डायरेक्टरी पे काम करना सीखेंगे, तो आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। ऐसे आप इसकी ओरिजिनल बुक पढ़ेंगे तो कॉम्प्रेशन का अलग चैप्टर बना देगा, ये हेड टेल सर्च करने के लिए अलग चैप्टर बना देगा, तो उसमें थोड़ा कमांड स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है। Yes, sir. Now I'm going to mark your attendance. Today is 19th. Okay, fine. Batch 1, 1, Present, sir. 1. 2, Present, sir. 3, 3, yes, sir. 4, 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, 10, 11, Yes, sir. 12, 13, Yes, sir. 13, sir.
14, 15, Yes, sir. 15. 16, 17, 18, Yes, sir. 17, 18, 19, 20, Yes, sir. 20. 21, Yes, sir. 21. 22, Yes, sir.